literally know that we can only understand one or two concepts, otherwise they will mixed up and you will get confused tomorrow, and instead of getting some marks you will not be going to get that one. So And also, sir, I got my result. Like the first exam which I wrote in grade 11, today I got my result. okay, you got your results, Yeah, and how much you the got? first exam. Sir, Oh, I got 95.28%. 95. Wow, very good. So it in which exams? Yeah. Chemistry or some other? In No, which? all together the exam, the overall Okay, percentage is okay, 90. okay. So let's talk. All together, overall percentage. Yeah, I understood. Actually, there is something. पता है क्या हो And रहा है? sir, I got least. Sir, I got least in chemistry. You got least in chemistry. Okay. So let's start. एक्चुअली केमिस्ट्री इज बाय प्रैक्टिस. केमिस्ट्री अगर आती है तो पूरी अच्छे समझ में आती है, और नहीं आती तो बहुत सर का दर्द बन जाती है, जो बहुत मुश्किल होता है निकलना. Okay, so let's study about this one. So actually, some redox Yeah. reactions that you have studied in the 9th, 10th standard, that is the redox reactions. Okay, so what does the terms redox means? It means reduction. Reduction and means oxidation. The reduction and oxidation which takes place simultaneously is known as redox reaction. Yes. Okay, so you know that in the 9th, 10th standard you have studied this one, that the Oxygen. addition of hydrogen in reduction, addition of hydrogen or removal of oxygen, that you have studied, that is the reduction in the 10th standard. And in the vice versa of this one, addition of oxygen. Okay, and the removal of hydrogen, you have studied this one, is the redox reactions. Okay, but today we will not going to deal with this one, addition of hydrogens, because this is an 11th standard and we need to study this one in advanced way. Okay, so this is a simple way that addition of oxygen is taking place, it means oxidation. Removal of hydrogen is taking place, it means oxidation. But actually, if we need to simplify this one in single term, what is actually the redox reactions and what is the reduction? So on the basis of electrons, we can simply say that addition of electron, sorry, addition of electron, and oxidation is oxidation is actually removal of electrons. Okay, removal of electrons means if the electrons are being removed from somewhere, okay, it means the removal of electrons. Okay, यहाँ तक आपको बेटा क्लियर हो गया ये कि रिडक्शन मींस होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समथिंग, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन. यहाँ ये समझ में आया आपको? गॉट इट दिस पॉइंट? अलीना, internet issue. Do you use which network are you using in Lina? Yes. Yes, I'm asking beta. Do you have Wi-Fi in your home? How do you use the network? May I know? कि आप किस तरह? अलीना, एक काम करता हूँ मैं एक काम बेटा मैं एक काम करता हूँ आपका. हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज आ रही है आपको? Is I'm audible to you? Yes, sir. It's receiving. मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं आपको मेन कॉल करूँ अपने नंबर से, और फिर टेलीफोन मतलब we will be using the phone communications and we will be sharing the screen both simultaneously. Is it possible? So that is the same number. WhatsApp. Yes.
No, on the WhatsApp again it will be internet using, so it will be again creating a problem. Can we use? The other call, Yes, it's the not. main normal main call. बेटा मुझे आवाज International call, I think we put. प्लीज टाइप द टेक्स्ट. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बेटा, आवाज बहुत ज्यादा लैग कर रही है. सो मे आई कॉल यू. My phone. अच्छा मैं कॉल ही करता हूँ, एक काम करता हूँ. My SIM not Indian, so it will cost too much. अच्छा तुम्हारा नंबर जो है वो इंडियन नंबर नहीं है. यू डोंट हैव द इंडियन नंबर राइट नाउ. No, sir, I don't have Indian number right now, so it would be not possible to do that. I think so. Can you try WhatsApp? Okay, let's try the WhatsApp call. यस अलीना, आवाज आ रही है बेटा? इज आई एम ऑडिबल टू यू? मैं अपना पहले वाला माइक
बेटा आपको वहां पर आवाज आ रही है, यहाँ पर आवाज आ रही है, मेरी Yes, sir. आवाज आ रही है आपको मीटिंग Yes, में? sir. Yes, sir. Now it's fine. ओके, सो लेट्स ट्राई हियर वन मोर टाइम, लास्ट टाइम हम लोग ट्राई करते हैं। बेटा Okay. आपको ना एक वाईफाई कनेक्शन की जरूरत है, अदरवाइज मींस आपके घर में वाईफाई, आर यू यूजिंग द वाईफाई? Yes, sir. It's Wi-Fi only. सो आर यू यूजिंग द लैपटॉप? Yeah, I'm using the laptop. सो मैं आपकी प्रॉब्लम बताता हूँ, इसका क्या करना पड़ेगा आपको। आपको ना एक लेन लेन डू यू हैव द लेन, व्हिच लैपटॉप आर यू यूजिंग? I'm using HP. HP ना? सो इज देयर अ सॉकेट लाइक मींस जहां से हम लोग उसको वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा टेलीफोन No. की वायर, ऐसा सॉकेट है, ऐसा कुछ उसके अंदर है जिसमें हम लोग उसको, is there any port like this and where we can connect the that is written like this way, LAN लिखा हुआ हो यहाँ पर, No, sir. There is nothing like that. ऐसा कोई स्क्वायर शेप नहीं है जिसमें हम लोग LAN लगा सकें? सो Uh, अगर आप आपने उसको वायर से कनेक्ट किया ना तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और ये हमेशा बहुत अच्छा चलेगा। ओके, सो चलो फिर भी एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं नेक्स्ट टाइम। सो आपको यही इसका सिंपल इलाज है कि आप लोग को इट विल कॉस्ट अबाउट 100 रुपीज में आपको केबल मिल जाएगी मार्केट से। यू कैन ऑर्डर इट ऑन योर फ्रॉम योर मीन्स, आप ऑर्डर कर सकते हैं कैट 6 केबल, कैट 6 केबल हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, एंड दैट कैट 6 केबल जब ये आपके पास आ जाएगी, उसको आप अपने राउटर में लगाइएगा एक तरफ और अपने लैपटॉप में लगाइएगा, और बस उसमें किसी चीज की कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली वो चलने लगेगा। okay, ओके sir. I will ask and I'll see to it. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग ट्राई करते हैं, अगर आपकी बार वॉइस लैग करी तो फिर मतलब मजा ही नहीं आएगा पढ़ाने में, तो फिर क्या कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे लगा था कि लेने का एग्जाम है और मुझे उसको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैं सोच रहा था कि उसको मैं तैयारी करा देता हूँ। चलो Thank हम you लोग so फिर, much. I'm so sorry that 4 p.m. I don't know what happened. Network was very weak. I could not listen to you. डजंट मैटर। सो सुबह सुबह बहुत अच्छा नेट चलता है आपका, लेकिन सुबह आपका स्कूल होता है तो क्या कर सकते हैं। उस दिन मैंने पढ़ाया था तो बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, क्लोरीन। सो एक्चुअली जब हम लोग के पास कोई भी एटम अपनी इंडिविजुअल फॉर्म में लिखा रहता है, जैसे सपोज करो वी हैव राइटिंग दिस वन लाइक दिस वन इज Fe लिखा हुआ है। ओके, देयर इज नो चार्ज रिटन हियर, इट इज एन इंडिविजुअल एलिमेंट्री फॉर्म, अकेला और अपनी किसी कंपाउंड के साथ नहीं है। यानी ये ऐसे नहीं लिखा हुआ FeSO4 लाइक दिस वे, नो, इट इज बीइंग रिटन अलोन, अकेला लिखा हुआ है। देखिए दैट इज Fe। ओके, इन द सिमिलर वे इफ इट इज बीइंग रिटन लाइक द मॉलिक्यूलर फॉर्म, क्लोरीन अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में Cl2 ही लिखा जा सकता है। इन द सिमिलर वे इफ आई एम राइटिंग O2 तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस वे O2। ओके, O2 ऑक्सीजन, okay, Br2 N2, okay, and like we have the sodium, calcium, if they are written alone beta अकेले लिखे हुए हैं, so in that case beta they are going to have their oxidation state is zero, means they are not going to have any charge and their oxidation state is zero। okay, लेकिन अगर ये Now, किसी, can I ask you something? Only for these elements, it's zero or any other as well? मतलब अगर कोई एक एलिमेंट मतलब जैसे कि आयरन, मतलब देखो एलिमेंट तो हमारे पास क्लोरीन भी है, लेकिन Uh, क्लोरीन जो होता है वो अ, अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, मींस इट इज ऑलवेज फाउंड इन द Cl2 फॉर्म, नॉट द Cl। सो अगर कहीं पर Cl2 है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि HCl की बात कर रहा हूँ मैं, HCl में ये इट इज नॉट इन द अलोन और इंडिविजुअल फॉर्म, इट इज विद द हाइड्रोजन। बट अगर कोई क्लोरीन है तो क्लोरीन अपनी इंडिविजुअल फॉर्म में कैसे मिलेगा, दैट विल बी इन द Cl2। so if a metal जैसे Fe जो है आयरन, if it is found in the elementary form, it is does not, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता, ये elementary form में मिलता है Fe, sodium, calcium, potassium, so it will be written like this way, so they are going to have their oxidation state zero। okay, and when they are in their compound form then they are going to have their, जो भी इन पर चार्ज होता है वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल Fe is written Fe2 positive, so their oxidation state is 2। in FeSO4, if I'm writing here FeSO4, so we know that the sulfate ion is going to have minus SO4 minus 2 valency, then here we can understand that कि iron के पास positive valency होगी, तभी ये दोनों मिलकर के
वी विल कंसिडर दैट कि ये दोनों मिल करके तभी इस पर ओवरऑल चार्ज 0 होगा. ओके, गॉट इट और स्टिल हैविंग सम डाउट? Adina? So I did not understand the FeSO4 minus 2. Okay. So I'm writing here ki when you heat, I'm writing here, okay, let that carbon when burnt with oxygen, it will gives you carbon dioxide, CO2. Okay, so carbon is written in its elementary, in its purest form. Okay, so its oxidation state will be 0. Here oxygen is written in its elementary form, so its oxidation state will be 0. But here you see that the carbon is present with the oxygen, so here it will not be going to have its oxidation state 0, so it will be going to have, so आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर इसकी केसेस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. सो इफ वी हैव two oxygen atoms like this one, O2. Okay, so if we have the 2 oxygen atom in the carbon dioxide, then they will be going to give the charge as -4. ये -4 टोटल चार्ज आपको देंगे. तो अगर ये -4 टोटल चार्ज ऑक्सीजन से आपको मिल रहा है, then you will be going to get the +4 from the carbon. Got it beta? So you're saying that CO2 it has already -4. Yes, it is 0, this is 0, and this will be going to have +4. Here the carbon oxidation state is +4, and oxygen individual oxygen oxidation state is -2. Yeah. So it would be 0, right? So +4 and -4. Yes, it will be 0. So here you see that from 0, if the 0 it increases, means from 0 to +4 it increase, means 0 से कोई चीज +4 हो रही है तो उसका मतलब वो इंक्रीज कर गई है नंबर लाइन की अकॉर्डिंग, जैसे आप देखते हैं. So if it is increasing, means the oxidation state is increasing, so it will say that it is oxidation is taking place. And if you see that here oxygen को आप देखेंगे यहाँ पर कि वो 0 से -4 पर हो गया, -2 पर चला गया, बिकॉज -4 इज द टोटल. -4 आपको 2 से मिला है, लेकिन एक्चुअल में उसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो हियर वी आर गोइंग टू हैव द -2 एज ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कोई चीज 0 से -2 पर चली गई है तो उसका मतलब वो रिड्यूस हो गई, मतलब डिक्रीज कर गई. तो रिड्यूस मीन्स रिडक्शन. गॉट इट? So in this reaction, in this simple reaction, the carbon is oxidized because its oxidation state increases. But in this case, we will say that the oxygen is reduced because its oxidation state is decreases. Got it? Got my point? Yes, sir. Okay. So let you need to tell me one more thing here. I'm going to give you the example, and then you need to tell me which one is oxidized and reduced. Okay. So if I'm writing here that MnO2, or I'm writing some other simple equations. Okay, I'm writing here Na when react with HCl, or if I'm writing it some with Na when react with calcium sulfate, then it will gives you sodium sulfate, Na2SO4 plus calcium. So if I ask you that which is sodium is oxidized here or reduced, so what you will see, whether it will oxidize or reduce. Sodium. So you see that sodium is going to have 0 here because it is written in its individual form, and calcium is written in its individual form. It will be going to have the 0. But what is the oxidation state of calcium in this CaSO4? Tell me. What is the charge on calcium when it is in the compound? Compound में अगर calcium होता है तो उस पर क्या charge आता है? 0. नहीं बेटा, 0 तो नहीं होता. SO4 की कितनी वैलेंसी, कितना चार्ज होता है SO4 पर? सल्फेट आयन पर कितना चार्ज होता है? It's 8. बेटा -2. The whole total is going to have the -2 charge. Okay. SO4 -2. So SO4. Okay, SO4 -2. Okay, so that in the calcium it will be +2, so that it will become 0. So here it is going to have the +2 calcium. So how SO4 -2? SO4 -2 कैसे होता है वो अभी समझाऊं तो फिर टाइम लगेगा. स्ट्रक्चर्स होते हैं SO4 के. लेट मेक यू.
So S Okay, sulfur, sir. I will remember in such a way SO4 would be -2. बस याद रखिएगा KSO4 का -2 होता है, because like we have the carbonate ion CO3 that is also going to have the -2. So ये valencies हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा. Okay, so carbonate ion has going to -2 charge. Okay, so this is simple. So if I'm writing here Ca and if I'm writing here Na, तो Na के पास आपको पता होना चाहिए कि Na की जो वैलेंसी होती है +1 होती है. Yes, Okay, a positive one. So it so would it be +1 will be going to write here because Na की +1 होगी. So आप मुझे बताइए कि Na का ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन? yes, sir. So here it would be oxidation. Yes, it will be oxidation because it is increasing. Okay, +0, so 1 +1 पे आ गया, it will be oxy. It will be here, we will say that it is oxidation is taking place, and from here to here it is will be reduction because +2 से 0 पर आ गया मतलब reduce कर गया. Okay, reduction. Got it बेटा? Yes, sir. Got it? समझ में आया ना? सिंपल था ये तो. Okay, अब हम लोग को कुछ चीज याद रखनी है जो हमेशा आपको याद ही रखनी होंगी कि हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे वी हैव द ग्रुप 1 एलिमेंट्स. ग्रुप 1 एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, calcium, sorry, not calcium, lithium, sodium, potassium, Potassium, calcium, magnesium. rubidium, cesium. बस यहीं पे क्या देखिए, cesium. Okay, Cs. This one is lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. They are all going, they always be going to have the +1 oxidation state. वो भी जब जब ये कंपाउंड में होंगे. मींस अगर ये इंडिविजुअल लिखा हुआ है, जैसे सोडियम ऐसे लिखा हुआ है इंडिविजुअल, देन इट विल बी गोइंग टू हैव द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. Okay, if it is in compound, then only हाँ, जब ये कंपाउंड में होंगे तब and only on that time they will be going to have the positive oxidation state, positive one always. Okay, always, there is no कोई exceptions नहीं है. And इसी तरह से group 2 elements if I'm writing here is that beryllium, magnesium, calcium, strontium और barium. Beryllium, Be, magnesium, calcium, strontium, barium. They are always going to have the +2 oxidation state always. Okay. Oxygen generally have -2 oxidation state generally in most of the cases. yeah, Generally, most of the cases. okay. And hydrogen has +1 generally. Yes. Generally, but when it is in the +1 oxidation state, generally when it is in compound, I always talking बेटा अगर ये compound में है, अगर ये H2 की फॉर्म में है तब 0 होगा. Okay, in the similar way अगर यहाँ पर O2 की फॉर्म में है, then it will be going to have the 0 oxidation state. Okay, 0. What if it is O3? O3 का केस अलग है, वहां पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं O3 का. ठीक है, जनरली अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि O3 में भी मतलब एक ऑक्सीजन एटम की पता करनी होगी, कौन से वाले ऑक्सीजन एटम की बात चल रही है. तो अभी आप सीखोगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि खुद ही आप बता दोगी मुझे कि ओजोन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जब हम लोग सीखेंगे इसको. तो अभी इतना समझिए. ओके, क्योंकि एक एटम की हम लोग को बतानी होती है, फिर उसके हिसाब से हम लोग को एवरेज करना होता है. तो ओजोन का थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है एक्चुअली में, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे और तुमसे ही पूछूंगा मैं कि ऑक्सीडेशन क्या होगी. सो लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगी. सो इफ आई एम राइटिंग हियर O-2 एंड देयर विल बी, अगर है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा. ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मेरे पास पेरोक्साइड है, इफ वी आर हैविंग द H2O2, so we know that hydrogen can have maximum oxidation state of +1. हाइड्रोजन की +2 कभी नहीं हो सकती. ओके, सो if we are having the +1, so there are the two hydrogen atom that is going to have +1 and +1. so यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम हैं. so दोनों पर -1 चार्ज होगा, तभी इस पर ओवरऑल चार्ज 0 होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा. अदरवाइज अगर मैंने ऑक्सीजन को -2 ही मान के रखा यहाँ पर, तो इस पर ओवरऑल चार्ज मतलब H2O2 शुड बी लाइक दिस, -2 चार्ज आ जाएगा, जबकि पेरोक्साइड में -2 चार्ज नहीं होता. तो दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, या वी आर सेइंग पेरोक्साइड्स की फॉर्म में. जब पेरोक्साइड होती है तब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज -1. गॉट इट? जनरली इट इज -2, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड देन इट विल बी गोइंग टू हैव द, कितनी होती है बेटा? Sir, why is it so? Why it is so? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हाइड्रोजन
मतलब ओवरऑल कंपाउंड पे जो चार्ज होता है वो जीरो होना चाहिए. सो अगर मेरे पास दो हाइड्रोजन हैं एंड दे आर गिविंग मी द +1 एंड +1 चार्ज, और मेरे पास दो ऑक्सीजन है और इन दोनों का सेम चार्ज होगा, तो बताइए कितना चार्ज हो सकता है. सो यू कैन राइट हियर दैट 2x जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू +2. No, sir. Like why for peroxide it's -1? बेटा इनका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से कि हाइड्रोजन में हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर में ऑक्सीजन कुछ इस तरह से अटैच होती है. ओके, एंड हियर वी आर गोइंग टू हैव द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 and +1. Okay, then it will gives you But the, only in the case of peroxide, right? The yes, oxygen. in the case of peroxide. But if we are having this hydrogen oxygen, then oxygen then hydrogen, so this is the case of hydrogen peroxides. Okay, got it. So that will be going to have -1 +1 and +1. So इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केस होता है. ओके, गॉट इट. Yes, sir. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सीजन का केस है उसमें हम लोग को कभी कभी जो ऑक्सीजन होती है बेटा उसके अंदर हम लोग को कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है. ठीक है, सो एक्सेप्शंस हमारे पास हर जगह होते हैं. जिस तरह से हमारे पास क्लोरीन जनरली इज गोइंग टू हैव द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, Yes, sir. chlorine. But in case if it is forming the compound with oxygen like OF2, sorry O, अच्छा अगर मैं ऑक्सीजन का एक और केस बताता हूँ आपको. अगर ऑक्सीजन बेटा इफ इट इज मेकिंग, बिकॉज वी नो दैट फ्लोरीन इज ऑलवेज हैविंग द -1, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑलवेज के केस में एक और, दैट द फ्लोरीन is always going to have the -1 oxidation state. Always, it cannot have the +1 oxidation state. It is always going to have the -1 oxidation state. And this you have to memorize बेटा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा. इसकी वजह जानने लगोगे तो फिर, अभी मैं वजह बताऊंगा तो फिर टाइम नहीं है, टेस्ट कल है आपका ना. So fluorine, all the cases it would be -1. Always, if I'm writing here always, it will be going to have -1 fluorine. Done. So if I'm having this compound like OF2, so what will be the oxidation state of oxygen right now here? So here it would be oxygen would be 1 maybe. No, beta. If we are having the two fluorine atoms and the one fluorine atom is giving the -1 charge, so two fluorine atom will be giving you two -2 charge. Yeah. So if -2 charge is coming from this Two. one, so Two yes, would be. it will +2. Okay, so in case of OF2, when oxygen is reacting, is making with the fluorine, then in that case oxygen is going to have the +2 oxidation state. Okay, बाकी हर जगह पर ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. याद रहेगी आपको बात, बताइए, ये आपको याद रहेगी ये बात. Yes, sir. भूलोगे तो नहीं. ओके, सो ये हमारे पास आ गया ना. ओके, उसके बाद आगे हम लोग अगर इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान समझना. सो लेट्स मूव फर्दर. और आगे अगर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो अभी हमारे पास ये है ना. ओके, सो इफ आई एम राइटिंग, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारा ये टेस्ट पेपर करते हैं हम लोग, जो तुम्हारा टेस्ट पेपर है उसी को करते हैं ना. सो लेट्स डू दिस वन. मुझे खोलना पड़ेगा व्हाट्सएप वेब. So Alina, we have this one. Okay, so here's your test paper. So जो भी आपने मुझे भेजा था. Okay, so if I'm talking to you, अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर कि इसमें आप मुझे बेटा, इसमें आप मुझे HI की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, I की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आप कैसे मुझे बताएंगे कि I की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? I will do it. So how will you be able to calculate this one? Do you know how to calculate the oxidation state? Yes, sir. Okay, tell me. Why didn't you take the class yesterday? Sorry, sir. आपने कल क्लास क्यों नहीं ली थी, मतलब फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को? Sir, I had told, I don't know, it was some other class, I think.
I think I had physics class yesterday, before yesterday. बेटा साइंस का नॉट सेइंग कि मैं बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आपके पढ़ ही रहे हैं तो फिर अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे, अदरवाइज मतलब सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए हमारा, जब हम लोग एग्जाम से तो हम लोग को सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, फिर मुश्किल होता But है नहीं तो। x is equal to +7. हाँ, here we will get the x is equals to +7 oxidation state will get here, because here the oxygen is not in the peroxide form, so it will gives you what charge? It will gives you -2, and they are the 4 oxygen atoms, so we will assume this one 4. Then x we are assuming for the I, and we are assuming the +1 from the hydrogen, and that would be equivalent to 0, so that would be equivalent to that you will get here x -8 plus 1 is equals to 0, so x is equals to -7 is equals to 0, so that x will be +7. Okay, got it? So in the second question, if you see that here you see that p is in elementary form here, and so it will be going to have the 0 oxidation state here. Now calculate the oxidation state of phosphorus in this one phosphine and in this one. Okay. Calculated beta the oxidation state of phosphorus. Sir, doing. Sir, can you explain this question? Okay. Sure. So if I'm writing here that if the oxidation state, if P is written in the individual form, तो यहाँ पर तो कोई confusion नहीं होगा कि इसकी zero oxidation state होगी. Okay. Now I have told you कि हाइड्रोजन का सिर्फ जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो सिर्फ जब वो सोडियम यानी मेटल के साथ हाइड्राइड बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल NaH, ओके, कैल्शियम हाइड्राइड, हियर इट हैज द माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज ये हमेशा प्लस रखता है. ओके, सो हियर इट इज +1 and they are the 3 hydrogen atoms, so that will be +3 charge from the 3 hydrogen atoms, so that would be +3 from the we can say that here will be +3 from 3 hydrogen, so that will be -3 of the phosphorus here. Got it? यहाँ पे समझ में आया आपको? फॉस्फाइन में जो फॉस्फोरस है उसकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये आपको समझ में आया? Yeah, the answer of pH3 oxidation would be -3. Yes, in the pH3 में जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी. Yeah, phosphorus would be -3. ओके, एंड दिस क्यों होगी? क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास +1 चार्ज देता है, तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो दैट विल बी गोइंग टू गिव यू द +3 चार्ज. सो आप समझ गए होंगे. सो +3 को
जीरो करने के लिए क्या ऐड किया जाए, जो जीरो हो जाए तो -3। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, KH2PO2। ओके, सो यू नो दैट कि के जो है मैंने अभी आपको लिखवाया था कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, यानी कि सोडियम पोटेशियम स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, सॉरी सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये जो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है 1 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ने मान ली 1। हाइड्रोजन्स आर द 2 and hydrogens also have the positive 1, so they are the 2 hydrogens and that is going to give you the positive 1. And then we don't know the oxidation state of phosphorus here, so we will get here X, and you know that oxygen is going to have, यहाँ पर ऑक्सीजन peroxide की फॉर्म में भी नहीं है और ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन OF2 से बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, दैट विल बी -2. So write here 2 into -2, okay, and that will be equivalent to 0. So again, what you need to do here is that you have to write here 1 plus 2 plus x plus -4. So you can write here -4 is equals to 0. So how much you will get here? So आपको यहाँ पर मिलेगा कि x is equals to, ये -1 बचेगा और जब ये -1 उस तरफ जाएगा तो आपको +1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है बेटा, +1। कितनी आई है फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, है ना? आई कि नहीं आई बताओ अलीना, अलीना बेटा आवाज आ रही है? अरे अलीना है नहीं क्लास में? Yes, sir. अच्छा है, मुझे लगा कि क्लास में ही नहीं है। असल में पहले अभी कोई हमारी क्लास भी मॉनिटर होती है ना, तो अभी वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं क्लास। तो ओके, सो इफ आई एम राइटिंग हियर इज दैट कि x+1 हमारे पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है किसकी, यहाँ पर ये x बनाई है। अब मुझे बताइए फास्फोरस अगर 0 से +1 जा रहा है तो इस केस में फास्फोरस का क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अलीना बेटा, Sir, what do you mean? मैंने बोला कि इसमें जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी आई है, +1 आई है। ओके, सो 0 से अगर कोई चीज +1 चली गई है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, Oxidation. Oxidation. ऑक्सीडेशन, तो इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। So in this case, both oxidation and reduction is taking place. यस, इसमें इस वाले केस में आपको -3 हो रहा है 0 से, तो मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा Yes, है। sir. सो फास्फोरस इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो इसमें एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या, Redox. नो नो, उस सेम एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हुआ है, So फास्फोरस it ही, is a disproportionate. yes it is disproportionation reactions. Okay, so the correct option will be A. Got it. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है कि इफ HNO3 जो है वो चेंज हो जाए NO2 के अंदर, सो आप बताइए कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आएगा। सो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे आप या मैं करके दिखाऊं? I'll try to do. ओके, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा।
अलीना हुआ बेटा? अलीना, अलीना क्वेश्चन हुआ बेटा? Is I'm audible? अलीना क्वेश्चन हुआ बेटा? So the answer is 4. ओके, HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? 4। N की कैसे बेटा? H की वैलेंसी की, H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नाइट्रोजन की हम लोग मान लेते हैं X, और ऑक्सीजन हमारे पास 3 है तो 3 into -2, so you will get 0, so you will get +1 plus X minus 6 is equals to 0, so you will get X minus 5 is equals to 0, so X is equals to 5. तो यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी आई है? +5। ओके, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी नाइट्रोजन की? N2। सो वी नो दैट नाइट्रोजन मींस N2O, सो लेट अज्यूम दैट इज 2। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग 2 मान लेते, X मान लेते हैं इस केस में, और फिर यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2x हो जाए, and then we know that there is only oxygen atom, single oxygen atom here, so we will write here -2, then it will be equivalent to 0. So this -2 will go to that side, will become +2 is equals to 2x, then you cut it, you will get x is equals to 1. So यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? +1। अब बताइए मुझे बेटा कि +1 से +5 से कोई चीज +4 हो गई है तो कितना चेंज आया? +5 से कोई चीज +4 हो गई है तो कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में? अलीना, is I'm audible to you? अलीना, So can you hear me? yes I can hear you. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, it's clear. सो अब समझ में आया आपको कि इसमें +5 होगी, उसमें +1 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? No. मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आया? Yes, sir. So it would. तो Yes, sir. चेंज, It would be 4. yes it would be 4. okay, in which of the following changes the electron transfer, मतलब किस में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? ओके, 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किस केस में हुआ है? सो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से मतलब क्या है कि अगर means in which of the following changes there is a transfer, there is a transfer of 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं। सो 5 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आना चाहिए? 5 का चेंज आना चाहिए। कितना चेंज आना चाहिए बेटा? 5 का चेंज आना चाहिए। ओके, सो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस पहले में और बाद वाले में 5 का चेंज आना चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? गॉट इट अलीना? अपना माइक ऑन ही करके रखो, उसको म्यूट मत करो, अगर म्यूट तो नहीं कर Okay. रखा मैं। ओके, सो इसको ऑन ही करके रखो। सो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आपके पास Mn है आपके पास, ओके, MnO4। सो MnO4 में अगर मैं Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ, MnO4 माइनस, माइनस भी लगा हुआ है इसमें, सो इस बार इस पर पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज है, तो हम लोग को जो चार्ज होता है ना उसको -1, यानी -1 यहाँ पर दे रखा है तो हम लोग को यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा। अब Mn की हम लोग को निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग यहाँ पे X लिख देते हैं, प्लस करेंगे यहाँ पर, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का जो चार्ज होता है वो -2 होता है, तो इस तरह के 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर हैं, तो x इज इक्वल्स टू -8 इज इक्वल्स टू -1, सो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8 उस तरफ, तो x इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? +7। सो Plus here, 7. so here the oxidation state of Mn is +7, और यहाँ पर ये +2 दे ही रखा है, तो कोई चीज +7 से +2 हो गई है, तो उसका मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ओके, अब आप ये कह सकते हो कि सर ये वाला ऑप्शन को चूज करें। अच्छा, अगर मैं MnO4 यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर -2 दे रखा है, ओके, सो पहली बात तो ये है कि अगर मैं, मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा यहीं पर आ गया है,
अब यहाँ पर -2 दे रखा है तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आती, C के केस में +6 आती और +2 तो फिर 4 का चेंज होता। और वैसे भी आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, यहाँ पर तो और उल्टा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलूं आपसे कि बेटा आप मुझे बताइए इधर मैं 5 लिखूं 5 इलेक्ट्रॉन की इधर मैं 5 इलेक्ट्रॉन लिखूं, किस तरफ लिखूंगा? सो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +7 पर है, वो +2 पर पहुंच गई है, तो जाहिर सी बात है +7 में कुछ नेगेटिव -5 ऐड करोगे, -5 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो एक 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो तभी तो ये +2 पहुंचेगा। तो हम लोग को अगर ऐड भी करने होंगे इलेक्ट्रॉन तो वो इस तरफ ऐड होंगे। ओके, गॉट इट? गॉट इट Yes, अलीना? sir. सो इसका Yes, सही जवाब yes, हमारे sir. पास ए आ जाएगा। ओके, गॉट इट? ओके, अब हमारे पास Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द रिएक्शंस, ये हमारे पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर आपको दे रखा है क्रोमेट आयन और मैग्नीज आयन, और इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिडक्टेंट। रिडक्टेंट मतलब होता है, रिडक्टेंट का मतलब होता है, टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, बताइए मुझे बेटा एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट क्या करता है? जैसे सपोज करो कोई एक ट्रैवल एजेंट है तो वो क्या करता है, हेल्प करता है ट्रैवलिंग में, आपकी टूरिज्म मतलब It टूर। becomes the donor. Yeah, हाँ, donor. यू डोंट नो? So it becomes the donor. हाँ, सो मतलब आपको समझना है कि जो रिडक्शन में Yes. हेल्प करे, Yeah, जो I do. रिडक्शन, सो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और रिडक्शन में हेल्प कब होगी? जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन ऐड कराए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराएगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे में देगा तो यानी अपना रिमूव कर रहा है, और रिमूवल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि किसी चीज का अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा, और उसी का वाइस वर्सा है कि अगर किसी चीज का रिडक्शन हो रहा है तो मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब अगर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर कोई एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? Yes, sir. सो बेटा अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग टू यू हियर दैट इन द रिएक्शंस इफ आई एम राइटिंग हियर C2 O4, ओके, एंड देयर इज -2 साइन हियर, सो मुझे बताइए फटाफट से इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है कार्बन डाइऑक्साइड में, और Mn का +2 दे ही रखा है आपको। सो बस आपको क्या करना है यहाँ पर, अच्छा एक कुछ चीजें आपको याद रख लेनी है, बार बार आपको नहीं याद रखनी है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था, तो यहाँ पर MnO4 माइनस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारा 7 आया था, तो बार बार नहीं निकालना है उसको, एक बार याद कर लो कि MnO4 में, MnO4 माइनस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है, +7 होता है। इसमें MnO4 4-2, अगर -2 होगा तो इसमें +6 I ऑक्सीडेशन do. स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। सो ये आपको याद कर लेना, यू हैव टू मेमोराइज दिस वन। ओके, गॉट इट? कुछ को Yes, याद कर sir. लेना। सो इन MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। तो बताइए इस क्रोमेट आयन क्रोमेट नहीं है, C2O4 -2, C2O4 -2 आयन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? So 3 यस, इट विल बी 3। plus 3 3. +3, तो अगर कोई चीज +3 से +4 हो गई तो क्या हुआ उसका Uh, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? it would be oxidation. That would be reductant, no, because it is. हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिडक्टेंट भी होगा, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्ट, दैट इज आल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट क्लियर? So reducing agent is known as reductant. यस, रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट इज Okay. मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, गॉट इट? और यहाँ पर Okay. Mn+7 Yes, ऑक्सीडेशन sir. स्टेट से +2 पर चला गया तो इसका मतलब रिड्यूस हो गया, मतलब रिडक्शन, तो इट इज एन ऑक्सीडेंट। ये एक ऑक्सीडेंट भी है और ये रिड्यूस भी हुआ है। ओके, गॉट इट? Yes. सो व्हेन Sn2 पॉजिटिव से कोई चीज Sn4 पॉजिटिव में चली गई है, तो बताइए Sn2 पॉजिटिव से कोई चीज Sn4 पॉजिटिव में चली गई है, ओके, सो इसके अंदर क्या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है?
देखो प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं होता, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन जहाँ हमेशा इलेक्ट्रॉनिक गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही लूज किए जाते हैं, प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं है। सो अभी हम लोग बात करेंगे, तो बताइए इसमें अगर कोई चीज +2 से +4 हो गई है, तो क्या इसमें से कोई नेगेटिवली चीज निकली है, या इसमें इसमें कोई चीज नेगेटिवली चार्ज निकली है तब ये +4 हुआ है, या इसमें से कोई नेगेटिवली चार्ज चीज ऐड हुई है, बताइए। So it's losing electron, I think. Yes, it is losing electrons, so it loses 2 electrons. Okay, got it. Yes, sir. अब ये which of the following is the most powerful oxidizing agent? Fluorine. So fluorine is the most powerful oxidizing agent. So which is the powerful reducing agent? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स में होता है, मेटल्स में सीजियम हो सकता है, ओके, और दूसरे भी हो सकते हैं। अगर मैं इनमें बात करूंगा तो आयोडीन होगा, मतलब मोस्ट पावरफुल तो नहीं होगा उसके, मतलब इनमें अगर मैं So what पूछूंगा तो about chlorine? What क्लोरीन, about क्लोरीन नहीं yeah. आता, क्लोरीन नहीं आता। क्लोरीन भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, सेकंड नंबर पे क्लोरीन आता है। ओके, गॉट इट। So the most powerful is यस, द मोस्ट पावरफुल इज फ्लोरीन, गॉट इट, yes, गॉट इट sir. बेटा। ओके, Mm. लेट्स मूव फर्दर। सो आई हैव टू जूम दिस वन। अरे, सो लेट्स मूव। ठीक है ना, नीचे तो आ जा। अरे यार, ओके, आई अंडरस्टूड, लाइक दिस वे। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn निकाल लोगे आप, सिंपल है, जिसमें भी आएगी उसमें हाईएस्ट होगी। ओके, कर लोगे। Okay, sir. I will. 7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। ओके, सो उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास MnO4 है, KMnO4, तो इसमें हमारे पास +1 आ जाएगा। उसके बाद Mn का x मान लेता हूँ मैं, उसके बाद हमारे पास -8 होगा, सो दैट वुड बी द 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इसमें 7 आ जाएगी हमारे पास, तो यही इसका ऑप्शन होगा। ओके, Yes, sir. उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, सो we have this one, the oxidation state of carbon in this one you can calculate, that would be 0, because carbon is X and hydrogen is 2 hydrogen atoms, so this will be +1 hydrogen जो है वो +1 चार्ज देते हैं हमेशा, so you have to write here 2 into +1 and then -2 from the oxygen, so that would be going to have the 0 oxidation Zero. state. उसके बाद आगे, Zero. उसके बाद आप the oxidation state of Mn कितना आएगा बेटा, कर लोगे यहाँ पर, the oxidation number of Mn का यहाँ पर 0 हो जाएगा, That's और यहाँ seven. We had did. अच्छा We have Mn, done it previously, sir. ये तो हम लोग कर चुके हैं। तो Plus seven. इस तरह से आप सबका निकाल लोगे बेटा। 16th question could you explain? या 16 को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज है कार्बन का, तो यहाँ पर आप किसी का भी निकालना तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कार्बन को लिखिए आप 12x, 12x, okay, and then you have to write here from 22 hydrogen you will get +22 charge, okay, and from this oxygen you will get how much, 11 ऑक्सीजन एटम है तो आपको -22 चार्ज मिलेगा। ओके, अगर आपके पास 11 ऑक्सीजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम आपको माइनस का चार्ज देता है, -2 चार्ज देता है, तो आपको कितना मिलेगा, ये आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 0, so 12x is equals to 0, so x is equals to 0.12, so it will be 0. ओके, It's made more. सो इसी तरह से आप इसमें निकाल लीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे I माइनस think -3 यहाँ पर आएगा आपके पास, +1 यहाँ पर आएगा हाइड्रोक्लोरीन के साथ, +x, तो आपके पास यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आप सबको निकाल सकते हो बेटा। the C is the answer for 16. सी, तो फिर यही पर +2 होगा, बाकी सब में चेक कर लीजिए। 4 यहाँ पर हो गया, ये -2 आ जाएगा इसमें चार्ज। ओके, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आपके पास 2 और 2 0, इसमें भी 0 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट, गॉट इट बेटा। Yes, sir.
उसके बाद एक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम निकाल लोगे K2Cr2O7 में। पोटेशियम ऑलवेज हैविंग +2 चार्ज, ऑक्सीजन इसमें -2, तो कितना हो जाएगा -14। ओके +2 सो +2 हाँ, पता चला कितना +2 नहीं, +2 तो नहीं आना चाहिए, देख चेक कर लेते हैं। -14 तो -14 तो आएगा हमारे पास ऑक्सीजन से, और +2 आएगा पोटेशियम से, प्लस और हम लोग लिखेंगे Cr, तो Cr का हम लोग मान लेते हैं 2x, क्योंकि 2 Cr है तो विल राइट इट 2x, क्योंकि एक क्रोमियम का हमको निकालना है, ऊपर से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे +2। K will be sir, K will be +2 ऑलवेज, हमेशा। ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, सोडियम हो, पोटेशियम हो, लिथियम हो, so लिथियम 2 हो। into 2 So here you will get how much? 12, and this so 12 will go to I have a doubt like K would be 2, right? 2 into 2 is 4. इसके अंदर K2 है ना हमारे पास, तो we will write it 2x, sorry 2 for the 2 potassium, because 1 potassium give 1 positive charge, so 2 potassium will gives you 2 positive charge. 1 into 2 plus 2x Yeah, yes, 1 into 2, yes सही, मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया बेटा, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। ठीक है, 2 पोटेशियम है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 14 ऑक्सीजन है तो माइनस का 14, 7 ऑक्सीजन है तो माइनस का 14 चार्ज। गॉट इट, 6 आ जाएगा हमारे पास, +6। yes sir. ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यू विल गेट -12, यानी 2x इज इक्वल्स -12 इज इक्वल्स टू 0। सो ये 12 उस तरफ चला जाएगा, सो डिवाइड करोगे 2 से, यू विल गेट +6। गॉट इट। Yes उसके sir. उसके बाद सेलेक्ट द कंपाउंड इन द क्लोरीन व्हिच इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट 5। इनमें से बताइए कि किस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5 है। Okay sir. सो क्लोरीन की -1 होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है तब उसकी जो है -1 से +7 तक चली जाती है। So it will be going to have, Also option C, HClO3. हाँ यहाँ पर -6 और +1, -6 और +1 मिलके कितना हो जाएगा -5, और जब ये उस तरफ जाएगा तो हो गया ना, समझ में आया बेटा। Yes sir. So 19th question, the X value. हाँ आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की कितनी है बताइए। अभी मैंने बताया था MnO4 में से MnO4 माइनस में से +7 होती है, यहाँ 7, yes. यहाँ पर +2 है, तो बताइए क्या किया जाए यहाँ पर जो ये हो जाए। सो कितना इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड करो, 5. बस हो गया। Okay. Got it? थोड़ा तसल्ली मिली कि कुछ कर लोगी कल। Yes sir. अच्छा बेटा, जब हम लोगों ने इतनी देर पढ़ा है तो बस 2 मिनट और रुक जाओ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए कभी स्कूल वाले होते हैं ना थोड़े से ज़्यादा, सो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, मतलब कि फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आती है जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे कि Br, ठीक है 3 एंड Br3O8, ओके O8। सो अगर आपको पता है कि ब्रोमीन जो है वो हमारे पास अगर हम लोग को ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो इसके अंदर, सो यू विल गेट हियर 8 है तो माइनस का 16 हो जाएगा यहाँ पर, एंड +3x इज इक्वल्स टू 0, सो यू विल गेट हियर 16 इज इक्वल्स टू x/3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी ना फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती है, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ना ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस मतलब पूरे नंबर में ही होगी, ये कभी फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती। इसलिए नहीं आ सकती, हाँ बोलो क्यों नहीं आ सकती, इसलिए नहीं आ सकती क्यों। अच्छा तुम बोलो, बोलो बेटा। In this 16/3, it's divisible, right? It becomes 8. 16/3 से आप डिवाइड करोगे तो पूरा डेसिमल में आएगा ना, मतलब 16 इज नॉट डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 3, सो यू विल गेट 5.333 आंसर, तो जो कि पॉसिबल नहीं है कभी भी 5.33। So in that case, what we will do? सो अगर इस तरह से, तो कुछ के हमें स्ट्रक्चर्स याद रखने होते हैं, कुछ के हम लोग को स्ट्रक्चर्स याद रखने होते हैं, ठीक है। सो उसमें जैसे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर Br, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो इस तरह से होता है कि ब्रोमीन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ ऐसे अटैच है, ओके, एंड देन वी विल गोइंग हैव ब्रोमीन हियर, देन ब्रोमीन हियर, एंड देन ब्रोमीन हियर, एंड देन अगेन this 6 and this 6।
सो यहाँ पर जो ये वाला ब्रोमीन होगा, ये वाला जो ब्रोमीन होगा बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -2 इससे, -2 इससे, -2 इससे, तो इसके पास +6 चार्ज आएगा। इस वाले ब्रोमीन और ये ब्रोमीन दोनों सेम है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और इस पर जो आएगा फिर से +6 आएगा। तो इसमें 2 ब्रोमीन ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, और 2 ब्रोमीन ऐसे होंगे जिनकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो कुछ केस में हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे C3O2, C3O2 ट्राई कार्बन, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन सब ऑक्साइड। तो ये 2-3 ही है इस तरह के, तो मैं वो लिख देता हूँ, उनमें से आ सकता है। तो कार्बन सब ऑक्साइड में बेटा जो कार्बन होता है उसका स्ट्रक्चर्स की वजह, अगर तुम निकालोगे यहाँ पर तो यू विल गेट कार्बन की 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 4/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो फिर से इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड होकर बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो C, तो इसमें हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड C, देन O एंड देन O, इस तरह से होता है हमारे पास। तो इस वाले कार्बन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वाले कार्बन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी +2, -2 ऑक्सीजन से मिला है ना, -2 ऑक्सीजन से, तो इसकी +2 हो जाएगी, इसकी भी +2 हो जाएगी। अच्छा एक बात याद रखना, अगर ये कार्बन इस कार्बन से मिल रहा है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कार्बन अपने ही सेम एलिमेंट से मिलता है तो उसका कोई, उस पर कोई चार्ज नहीं आता। जैसे कार्बन इसी कार्बन से बॉन्ड बनाया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। इसी तरह से ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, जो दो बीच के सेंट्रल के ब्रोमीन थे, ये दूसरे ब्रोमीन से ही मिल रहे हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, 0। गॉट इट, गॉट इट बेटा, अलीना? So how are we supposed to memorize these diagrams? बेटा ये 2-3 ही है ना, 3-4 ही है, तो उनको मेमोराइज कर सकते हो, ज्यादा नहीं है। और अगर कुछ ज्यादा होंगे तो फिर मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ को, लेकिन अभी क्योंकि बिकॉज यू आर हैविंग एग्जाम्स टुमारो, सो इस उतने के लिए मुझे सिर्फ अभी उतना ही पढ़ाना है। सो एक तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, एक ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, और एक और मैं लास्ट बना रहा हूँ, ठीक है, दैट इज दी S4O6, okay, this is called the tetrathionate iron, tetrathionate ions, okay। तो दिस tetrathionate ions में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सल्फर्स होते हैं वो भी 4 सल्फर हैं, चारों एक सीरीज में, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, और ये जो लास्ट के दो सल्फर है, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो 2 सल्फर कुछ इस तरह से अटैच है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच है, ठीक है, और एक मतलब इस पर -2 चार्ज भी होता है, -2। एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, उसके पास -1 चार्ज होगा, एक ऑक्सीजन